اس کی 5 تا 8 یعقوب کا عام خط پہلا باب اس کی 5ویں 6ٹھی 7ویں اور 8ویں آئے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیے نیا نامہ صفحہ نمبر 223 پر خداوند کے کلام میں لکھا ہے، لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ خداوند کے پاک کلام کی پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ جماعت بولے آمین۔ شکریہ، سب بیٹھ جائیں۔ پریز گاڈ۔ 8ویں آیت کے اندر وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام۔ دو دلا شخص میرا جو آج کا سبجیکٹ ہے، ڈبل مائنڈیڈ مین، یعنی دو دلا شخص جو ہے، اس کے تعلق سے آج ہم اس سرمن میں تنگ دروازے کی سیریل میں یہ میسج کو سنیں گے۔ نیرو ڈور کی یہ سیریل جو لاسٹ سرمن ہے، تنگ دروازے میں داخل ہو، اور یسوع مسیح نے یہ کہا اپنے شاگردوں کو، لوگوں کو یہ تعلیم دی، گائیڈ کیا کہ تنگ دروازے میں داخل ہو۔ یہ تنگ دروازہ جو ہے سکڑا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ زندگی کو جاتا، مگر ایک کھلا راستہ بھی ہے، کشادہ لکھا ہے، اس کے اندر جانے والے بہت تعداد میں بہت بے شمار کھلے دروازے میں جا رہے ہیں، لیکن تنگ دروازے میں داخل ہونے والا شخص ایک وقت میں ایک دفعہ ہی جا سکتا ہے۔ یعنی ایک شخص ہے تو وہ ایک ہی جائے گا، یہ نہیں کہ اگر ہسبینڈ گیا ہے تو بیوی بھی ساتھ جائے گی، نہیں۔ ہاں، اگر ایماندار ہے، یسوع مسیح کے لہو سے دھلی ہوئی ہے تو اس کی وائف بھی جائے گی، بچے بھی یسوع کے لہو سے دھلے ہیں تو تنگ دروازے میں داخل ہوں گے، مگر ایک وقت میں ایک شخص ہی اس تنگ دروازے میں داخل ہو سکتا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے کہا اپنے لوگوں کو جان فشانی کرو کہ تنگ دروازے سے داخل ہو۔ آمین۔ اور یہ زندگی کی باتیں انمول موتی ہیں کلام خدا کا۔ آمین۔ یہ تو بھائی سونے سے کندن سے قیمتی باتیں ہیں، ان کو جو لے لے وہ زندگی کو حاصل کرے گا، اور جو مس کر دیتے ہیں، کبھی آئے کبھی نہیں آئے، وہ بہت سارے موتیوں کو کھو دیتے ہیں۔ بھائی یہ تو سونا دولت ان ساری چیزوں سے اتم ہیرے موتی ہیں، ہیروں سے بڑھ کر خدا کا کلام۔ آمین۔ آئیے خدا کے کلام کے لیے زور سے تعریف کریں۔ تو ڈبل مائنڈیڈ شخص میرا آج کا جو سبجیکٹ ہے، دو دلا شخص ہے۔ دو دلا شخص ایسا شخص ہوتا ہے جو دو خیالوں کے اندر بٹا ہوتا ہے، شکل ایک ہی نظر آتی مگر دو اس کی شکلیں ہوتی ہیں۔ آمین۔ ڈبل مائنڈیڈ شخص نظر شکل ایک ہی آئے گی مگر ایک اور شکل اس کی ہوتی ہے، اس کے خیالات ڈبل ہوتے ہیں، اس کے سوچنے کا انداز ڈبل، اور لکھا ہے یہ دو دلا شخص جو ہے بے قیام ہوتا ہے۔ آمین۔ یعنی اس کو قیام نہیں ہوتا، وہ کسی جگہ پر ٹھہر نہیں سکتا، وہ دھکے ہی کھاتا پھرتا ہے دنیا کے اندر، ایک جگہ پر ٹکتا ہی نہیں، کیونکہ دو دلا شخص ہے۔ اور لکھے یہ مت سوچے کہ وہ خدا سے کچھ حاصل کرے گا، کبھی حاصل نہیں کر سکے گا۔ لکھوا لے مجھ سے، ڈبل مائنڈیڈ شخص، دو دلا شخص کبھی خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی زندگی کے اندر ایمان اور شک ہوتا ہے۔ ایمان جو ہوتا ہے ایک دم کے اندر جیسے سمندر کی لہر ایسے اچھلتی اور پھر تھوڑے وقت میں اس کے بعد فنش ہو جاتی۔ اسی طرح دو دلا شخص کی زندگی کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، شک بھی ہوتا ہے، یہ دو چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور شک ایمان کو کھا جاتا ہے۔ شک جو ہوتا ہے یہ ایمان کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے، زندگیوں کے اندر فنا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے دو دلا شخص
बड़े जोश मारता है, ईमान के अंदर खड़ा भी होता है, लहर की तरह जोश खाता हुआ, मौजूदात को रिसीव करने वाला शख्स होता है, बड़ी बातें ऊंची ऊंची करेगा और कुछ देर के बाद फौरन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। जैसे लहर उठती है, जोश मारती है और दबा दूसरी लम्हे वो खत्म हो जाती है। इसलिए बाइबल के अंदर दो दिला शख्स के बारे में भरपूर तालीम पाई गई है कि भरपूर तालीम उसके बारे में नॉलेज दिया गया है। और तंग दरवाजे की सीरियल का ये लास्ट मैसेज के अंदर ये बता दिया गया कि दो दिला शख्स खुदा से कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। दो ख्यालों के अंदर ये बटा हुआ शख्स होता है, शक भी उसके अंदर होता है और ईमान भी उसकी जिंदगी के अंदर होता है, और ऐसे ईमान की बातें करता होगा, मैं ये हासिल कर लूं, मैं वो हासिल कर लूं, खुदा मुझे ये दे, मुझे वो दे, खुदावन देने लगेगा तो उसकी जिंदगी के अंदर शक आ जाता है। कहता शायद खुदावन, शायद मुझे ये चीज मिले या ना मिले, शक आ जाता है। फिर लिखा है शक ईमान को खत्म कर देता है, खा जाता है। ये बाइबल के अंदर, याकूब के खत के अंदर पढ़िए। लिहाजा भाइयों बहनों, डबल माइंडेड मत बनिए। अगर कोई डबल माइंडेड खुदा की हजूरी में मौजूद है यहाँ पर जमात में, तो आज वो एक दिल कर ले, माफी मांगे और एक दिल होकर खुदावंत की प्रशंसा करे। डबल माइंडेड जो शख्स होता है, दो दिला शख्स, ये बाइबल लिखा है खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकेगा कभी भी। मांगेगा दुआएं, मगर क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर शक है, तो शक की वजह से, शक की बना पर वो खुदा से कुछ हासिल नहीं कर पाता। इस्राएल और यहूदी लोग जो थे, बाइबल में लिखा है, वो दो दिले डबल माइंडेड लोग थे। खुदावंत के सामने वर्शिप करते, प्रशिश करते और साथ ही साथ दुनिया की ही बातों को अपने सामने रखते, खुदा की भी वर्शिप करते और फिर दुनियादारी के काम भी उनके अंदर बेशुमार भरपूर भंपार पड़ी होती और दिखावे के डबल माइंडेड लोग थे। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, ऐ रियाकार कौम, रियाकार लोग जो होते हैं वो अंदर से कुछ होते हैं और फिर बाहर से कुछ नजर आते हैं। बाहर से बड़े रूहानी नजर आते हैं, बढ़िया दुआवां करते हो ची, और कभी उनके घर में जाओ, दरवाजे के पास से गुजरे, गालियों के अलावा और कोई बात निकलते नहीं, लगते रूहानी है क्योंकि डबल माइंडेड है, दो ख्यालों के अंदर बटे हुए लोग हैं। इसलिए वो खुदा से कुछ हासिल कर ही नहीं सकते। ये शॉर्टकट बात है। इसलिए भाइयों बहनों, अगर कोई दो ख्यालों में बटा हुआ है, होश करे। जमात के अंदर कोई डबल माइंडेड शख्स बैठा हुआ है, अपनी जिंदगी पे गौर कर ले। 2018 के अंदर अगर वो पीछे पीछे डबल माइंडेड था, तो 2019 के अंदर भाई एक दिल करे, एक खुदा की प्रशंसा करे। आमीन। ये नहीं कि दुनिया की भी प्रशंसा और खुदा की भी प्रशंसा की जाए। अमेजश आपकी लाइफ के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर अमेजश है, खुदा की भी प्रशंसा करते हैं और दुनिया के गाने भी गाते हैं, दुनिया की वर्शिप भी करते हैं, इसका मतलब आप डबल माइंडेड माइंड रखते हैं, डबल माइंडेड शख्सियत है आप। इसलिए ख्याल करें भाइयों, आसमानी मुकामों में वो नहीं जा सकेगा। इसलिए ये तंग दरवाजा है, इसलिए ये तंग दरवाजा है। तंग दरवाजे में दाखिल होना है तो भाइयों वन माइंडेड माइंड होना चाहिए। वन माइंड होगा, यानी एक दिला शख्स, यानी दिल अगर खुदा को दिया है तो फिर खुदा के लिए ही वर्शिप होता है। आइए खुदावंद के जलाल की जोर पता लेते हैं। ऐसा दिल खुदा को पसंद है। तो खुदा का बंदा दाऊद कहता है, ऐ खुदा मुझे दो दिला शख्स से नफरत है, कराहत है। डबल माइंडेड मैन कभी भी खुदा से कुछ ब्लेसिंग को हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए बाइबल के अंदर, खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, सुलेमान के बारे में सुनिए। लिखा है सुलेमान ने 1000 सैक्रिफाइस दी, 1000 कुर्बानियां खुदा की हजूरी में लाया। खुदा की हजूरी में जब बादशाह बना, 1000 सैक्रिफाइस उसने खुदा की हजूरी में दी और रात को सो गया जाके। लिखा ख्वाब के अंदर खुदा उसे दिखाई दिया, उसे कहा सुलेमान मांग तू क्या मांगता है। आमीन। यहां तो भाई हदिया देने में लोग डरते हैं,
10% देने से घबरा जाते हैं, वहां उसने खुदा की हुजूरी में दिया, खुदा खुद उससे उसके पास आ गया। आमीन। ये कोई भेद समझे भाइयों, खुशी से दे, उसे खुशी से खुदा की हुजूरी में लाया। 10,000 सैक्रिफाइस कुर्बानियां, खुदा खुद उसके पास आया। खुदा ने कहा मांग सुलेमान, तू क्या मांगता है, तुझे दूंगा। उसे कहा खुदा बंदा मुझे हिकमत दे दे, मैं अपनी दया का इंसाफ कर सकूं। खुदा खुश हुआ उसकी बात पर। हालेलुया। खुदा शाद हो गया तो कहने लगा जा तुझे हिकमत भी दी, जो तूने मांगा नहीं, दौलत इज्जत शौहरत सब तुझे दी। आइए खुदावंद के लिए जोर करिए। खुदा ने कहा तूने जो कुछ मांगा तुझे दिया। तूने अब दुश्मन की जान नहीं मांगी, दौलत नहीं मांगी, दौलत का सवाल नहीं किया, तूने दुनिया की शर्त नहीं मांगी, तूने वो मांगा, हिकमत को मांगा, मेरे बेटे को ही इसको मांग लिया। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार ताली दें, क्योंकि यीशु हिकमत है। पौलुस रसूल खतों के अंदर कहता है वो हिकमत हमारे पास मौजूद है। आमीन। वो उतरी है आसमान से। तो भाइयों सुलेमान ने हिकमत को मांगा, कलाम को मांगा, और लिखा जब सुबह उठा, सुनिए गौर से, जब खुदा ने उसे दे दिया, सुबह उठते ही सुलेमान उसने शक नहीं किया। पता नहीं ख्वाब सी नजर आया ना, ख्वाब तो बड़ी सच है झूठ है, नहीं उसने थिंक किया। उसने ईमान से उस हिकमत को, दौलत शौहरत को, ब्लेसिंग को रिसीव किया। उसने शक नहीं किया। रत्ती बार उसकी जिंदगी के अंदर, सुलेमान की जिंदगी के अंदर शक नहीं आया, तभी उसने खुदा से हिकमत को हासिल की। अगर शक आ जाता, कहता ख्वाब सी ना, ख्वाब ही सी ना, ऐसा सोचता, कभी हिकमत को ना खुदा से मांग मिल ही नहीं सकती थी। शक ईमान को खा जाता है। ईमान से उसने उसको रिसीव की, ब्लेसिंग को रिसीव किया, और उसे हिकमत खुदा ने बख्शी। आमीन। इसलिए भाई बहनों, डबल माइंडेड शख्स कभी खुदा से कुछ हासिल नहीं कर सकेगा, हालांकि मांगेगा बहुत कुछ। और पानी की यहाँ पर उसकी जिंदगी के बारे में लिखा है कि वो पानी की जो है मौजों की मानद और फिर लहरों की मानद है। जैसे पानी के अंदर ऐसे लहर उठती फौरन और फिर थोड़ी लम्हा के बाद फिनिश हो जाती है। इसी तरह एक डबल माइंडेड शख्स ईमान में बढ़ता है, खुदा मुझे ये दे दे वो दे दे, मांगता भी है मगर शक करता है, पता नहीं मिलेगी या नहीं मिलेगी। जब ये सोचता है तो फिर उसका ईमान खत्म, फिनिश हो जाता है। इसलिए भाइयों बहनों, शक अपनी जिंदगी में कभी आने ना दें। भाई शक अगर आ गया तो घराने बर्बाद हो जाते हैं। अगर बीवी, याद रखिए, खामद पर शक करती है तो औंधे वाल बड़ा देखना है, अखा थले रखा कर, इसका मतलब शक है। हामिद सीधा खड़ा है, सीधा बैठा कर, ये शक है। हामिद भाइयों, अगर ये बीवी कहती है या खामद कहता है तू बड़ा तैयार होनी है, अगर ये ऐसा सोच लिया, इसका मतलब आपने अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, शक कर रहे हैं। बीवी कभी अपने खामद पर शक ना करे। आमीन। ईमान पर चलिए, ईमान जो है आपको बहुत ऊपर ले जाएगा। बीवी भी अपने खामद पर कभी शक ना करे, ईमान पर चले। आमीन। भाइयों, ईमान पर चलना होगा। जब शक बीवी करेगी या खामद बीवी पर शक करेगा, इसका मतलब अपने हाथों से अपने घर को बर्बाद कर रहा है वो शख्स, या औरत हो या मर्द हो। इसलिए भाइयों, शक कभी आपकी जिंदगी के अंदर ना आए। शक आएगा तो बर्बादी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए बीवी खामद की इज्जत करे और खामद बीवी की ऑनर करे। आमीन। इसलिए शक कभी ना आने पाए। जब शक आ जाएगा, इसका मतलब बर्बाद हो जाएंगे आप। तो बर्बादी को अपनी जिंदगी में कभी आने ना पाए। इसका मतलब आप डबल माइंडेड लोग हैं, शक रखते हैं, खुदा के साथ भी चलते हैं, और फिर दूसरा शक हो, ईमान में कमजोर हो, तो फिर इसका मतलब डबल माइंडेड है। तो बाइबल के अंदर छोटी सी एग्जांपल दूंगा, सुनिए बाइबल के अंदर। इसलिए शक कभी ना कीजिए, शक तो ईमान को खा जाता है। तो शक करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, हलाकत के अंदर चले जाएंगे, शैतान को मौका मिलेगा। और शैतान यही तो चाहता है कि वो शक डालता है, और जब शक डालता है तो आपका ईमान बर्बाद हो जाता है। आप
शैतान के हवाले अपने उन लोगों को कर रहे होते हैं जब शक कर रहे होते हैं, और ये बड़ी खतरनाक हालत है। लिहाजा मैं आपको मुझसे यही बताऊंगा कि शक ना कीजिए। 2018 के अंदर, पिछले सालों के अंदर शक वाली जिंदगी नहीं, डबल माइंडेड थे अगर आप। मैं दो ख्यालों के अंदर बटे हुए थे, खुदा के साथ भी चल रहे थे और शक भी कर रहे थे। इसका मतलब डबल माइंडेड थे आप। इसको खत्म कीजिए, तब हम दरवाजे में दाखिल हो सकेंगे। और खुदावंद के कलाम के अंदर छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहूंगा। बाइबल में लिखा है, बलाम नबी इस्राएल के अंदर, बनी इस्राएल का नबी था, प्रॉफिट था, बड़ा अच्छा खादम था, खुदा से कलाम मांगता, खुदा अपने कलाम को नाज़िल फरमाता। और वहां का बलक बादशाह था, वो लोगों को, बादशाह को फतह करता हुआ यहां पर इस्राएल को फतह करना चाहता था। और इसने, ये बलक जो बादशाह था, इसने बलाम नबी को बुलाया इस्राएल में से। उसने कहा कि तू बनी इस्राएल पर लानत कर दे। ये जानता था कि जब बनी इस्राएल पर लानत हो जाएगी तो इस्राएल डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगी। तो जब लानत कर दिए जाते, नबी कर देते थे, तो वो कौमें फिनिश हो जाती थी। तो ये आया, उसने कहा, बलक बादशाह ने बलाम से कहा, मैं तुझे अपनी बादशाही के अंदर ओहदा दूंगा, कुर्सी दूंगा, फिर दौलत दूंगा, शोहरत दूंगा, हर चीज तुझे मिलेगी, तू जाकर कौम पर लानत कर। अब अच्छा नबी था, खुदावंद की वर्शिप करता था, कलाम को रिसीव करने वाला शख्स, लेकिन दो ख्यालों में बट गया। एक तरफ लालच है, दौलत, इज्जत, शोहरत, रुतबा है, और दूसरी तरफ खुदा की वर्शिप, और डबल माइंडेड हो गया। दो ख्यालों के अंदर, दो सूरतों में बट कर रह गया। और इस्राएल पर लानत करने, गदी पर बैठा इस्राएल पर लानत करने जा रहा है। लेकिन वहां पर गदी आगे बढ़ नहीं रही, नबी को बचाना चाहती, आगे फरिश्ते ने तलवार पकड़ी हुई है भाई, और वो दौलत के लालच में गदी को मारता चला जा रहा है। चल आगे, चल आगे, पहाड़ पर मैं बनी इस्राएल पर लानत करने जा रहा हूं। तो गदी आगे जा नहीं रही। खुदा ने गदी की जुबान खोली, और नबी होश कर, आगे फरिश्ता है, तलवार पकड़े तेरी गर्दन उड़ा देगा, तो क्या कर रहा है? उसे देखा कि तो फिर भी बात नहीं आया। दौलत किस कदर उसे हासिल करने की ख्वाहिश, रुतबा मिल जाएगा, शोहरत होगी दुनिया के अंदर, खुदा को छोड़कर, खुदा की कौम को छोड़कर। हालांकि नबी जानता था कि बनी इस्राएल पर मैं लानत कर नहीं सकता, फिर भी करने जा रहा है, और फिर भी करने गया। मगर खुदा ने उसके अल्फाज को बदल दिया। कहने लगा कि इस्राएल में से एक सितारा निकलेगा, और इस्राएल में से एक आशा उठेगा जो नवाब की नूरी को मार मार कर चकना चूर कर देगा। हालेलुया। उसने क्या तो लानत करने के लिए था, मगर बनी इस्राएल को बरकत देने लगा। आमीन। आइए खुदावंद के जलाल के लिए। लिहाजा दुनिया के अंदर बेशुमार लोग, डबल माइंडेड लोग आप पर लानत करने की कोशिश करें, जादू चलाने की कोशिश करें, या लानत आप पर भेजे, भाइयों आप पर लानत नहीं चलेगी। आमीन, आमीन। और भाई जादू ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ नहीं चलता। आमीन, आमीन। तो जादू आप पर नहीं चल सकता, ना तो कोई चीजें आप पर चल सकती है, ना कोई तवीज आप पर चल सकता है। तो भाइयों बहनों, इस चीज से मत घबराएं कि जादू को चला देगा, कोई दुआ बददुआ दे देगा। आप पर बददुआएं नहीं असर करेंगी, क्योंकि आप यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं। आप खुदावंद के लहू की प्रोटेक्शन के अंदर खुदा की हजूरी में जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसलिए भाई बहनों, इन चीजों से आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदावन आपके साथ है, खुदा का रूह आपके साथ है। इसलिए आपने कभी भी जो है वो परेशान नहीं होना, क्योंकि खुदा का रूह आपके साथ है। इसलिए भाई बहनों, डबल माइंडेड शख्स होने की कोशिश ना करें। गया तो वो अच्छा नबी था, गया तो लानत करने, लेकिन खुदा ने उसकी बदल कर रख दिया और उसने बनी इस्राएल को बरकत दे दी। लिहाजा आज भी बेशुमार खादम तलीम का पता नहीं होता, मगर खुदा गलत नबूवत करने जाते हैं, गलत कलाम सुनाते हैं, तलीम का पता नहीं, लेकिन खुदा अपनी इज्जत की खातिर उनके अल्फाज को बदल देता है, बरकत के अल्फाज में बदल देता है। आमीन।
इसलिए भाई बहनों, खुदा ने अपना काम लेना होता है, लेकिन फिर बाद में बलाम नबी क्या कहता है? बलाम कहता है काश के मैं ईमानदारों की मौत मरूं। ये ख्वाहिश खुदा के सामने रखता है। उसे पता है कि मेरे अंदर लालच है, मैं डबल माइंडेड शख्स हूं, मेरा दिल जो है दो डबल माइंडेड हुआ है, दो ख्यालों में बटा हुआ है। दौलत की ख्वाहिश मेरे अंदर है, दुनिया की ख्वाहिश मेरे अंदर है। इसलिए भाई बहनों, फिर वो कहता है, ख्वाहिश इज़हार करता है, खुदावन काश के मैं, काश ही कहता है, शक के अंदर रहता है। काश कहता कहने वाला शक के अंदर होता है ना, काश शक की काश के मैं ईमानदारों की मौत मरूं, मगर हलाक कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो भाई बहनों, इसलिए डबल माइंडेड मत बनिए, खुदा से मोहब्बत कीजिए। अगर आपका दिल दो ख्यालों में बटा हुआ है तो उसे खुदावंद की वर्शिप के लिए इस्तेमाल कीजिए। अगर खुदा के साथ चल रहे तो खुदा के साथ चलिए। ये नहीं कि खुदा के काम भी आप कर रहे हैं, खुदा की खिदमत भी कर रहे हैं और दुनिया के काम भी आपके अंदर वाजिया नजर आ रहे हैं। तो भाइयों, ऐसी हालत है तो खतरनाक हालत है। ऐसा शख्स कभी खुदा से कोई बरकत हासिल नहीं करेगा, ना तो तंग दरवाजे में दाखिल होगा, ना आसमानी मकामों में जा सकेगा। जिंदगी हमेशा की वो कभी हासिल नहीं कर पाएगा। इसलिए भाइयों बहनों, हमें खुदावंद के सामने अपने आप को सरेंडर करना है। अपने आप को खुदा, अपना दिल जो है खुदावंद को देंगे तो फिर खुदावंद की वर्शिप करेंगे और फिर खुदावंद आपको बरकत देगा। इसलिए अपनी जिंदगी पे वॉच कीजिए, गौर कीजिए। अगर आप डबल माइंडेड, यहाँ पर कोई शख्स बैठा है, दो ख्यालों में बटा है, दुनिया को भी खुश कर रहा है और खुदा को भी खुश करने की कोशिश कर रहा है, तो माफी मांगे, इस मुश्किल से बाहर आ जाए, खुदा के सामने अपने आप को पेश कर दे। खुदा उसकी सोचो ख्यालों को बदल डालेगा। आमीन। आइए अपने सर को झुकाइए, आंखें बंद कीजिए।